Jai Hind class. Today we are going to start with the lecture number 2 of same chapter, that is the angle and its measurement, with exercise number 1.1 word problems. Students, in previous class we have already done how to convert angle measure, that in term degree to radian and radian to degree. Let's revise it, then we start with the same word problem. Question number 1 is given that two angles of a triangle are in 5 pi by 9 and 5 pi by 18 degree and radian measure of third angle. Students, as we know that sum of all angles of a triangle is 180 degree. That is the property of angles of a triangle. Let me write over here, this is your x, y and your z. As we can write over here, sum of by the property of angles of a triangle, we can write over here x plus y plus z equals to 180 degree. But it is in terms of the degree, and in question it is given in terms of the radian. So what we can write over here? So we can write x plus y plus z equals to pi. Pi in terms of the radian and 180 in terms of the degree. Okay, two angle already is given here. For example, y and z is given, that we need to find out the third, that is a x. Let me write over this 5 pi by 9 and this is your 5 pi by 18, and sum of these three equals to pi, that is 180. Sum of these three equals to pi. So let me write over here x plus y plus z equals to pi, and here we need to find out x, and it is a 5 pi by 9 plus 5 pi by 18, and it is equals to pi. Okay, so x equals to, we can write a pi minus, so other side this become a minus term, 5 pi by 9 प्लस 5 पाई बाय 18. नाउ वी हैव अ कैलकुलेशन, नथिंग एल्स. हमारे पास सिर्फ कैलकुलेशन है, हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कैलकुलेट करना है. ओके, इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा 5 पाई बाय 9 प्लस 5 पाई बाय 18, तो मैं जो इसको लिख सकता हूँ 10 पाई बाय 18 एंड प्लस 5 पाई बाय 18. क्लियर? 10 पाई बाय 18, 5 पाई बाय 9, multiply numerator and denominator by 2, and we are getting 10 pi by 18, so that we can calculate it easily, because both have a, both this fraction have a same equal denominator part. So we can write as a pi minus, so this become 15 pi divided by 18. So cross multiply, so x equals to, after cross multiplication we are getting 18 pi minus 15 pi and divided by 18, which is equals to 3 pi divided by 18. So x equals to, we have a pi by 6 in terms of the radian. This x in terms of the radian. Now we have to convert in terms of the degree. So how to convert this angle in terms of degree? As we know this from degree to radian. From degree to radian, how to convert is for this. If you have not seen this lecture, अगर आपको डिग्री टू रेडियन में और रेडियन टू डिग्री में कन्वर्जन नहीं समझ में आ रहा है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो हमने उन्हें प्रीवियस लेक्चर में किया हुआ है. दैट वाज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द दिस एंगल एंड इट्स मेजरमेंट. And in that lecture we have covered how to convert this degree to radian and radian to degree. So for conversion of degree to radian, for example it is theta degree. In terms of the radian में अगर मुझे convert करना है, theta multiply by pi divided by 180, and it is in terms of the radian. एक कौन से टर्म में? रेडियन में है. अगर मेरा ये रेडियन में दिया हुआ है तो मैं क्या करूँगा, थीटा मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय पाई, एंड इट इज़ ऑफ द फॉर्म दी डिग्री. ठीक है, तो मुझे रेडियन में ऑलरेडी दिया हुआ है और मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा इसको, सो पाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय पाई करूँगा. आप यहाँ पे देख सकते हैं 180 डिवाइड बाय पाई, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, डिग्री मिलेगा. ठीक है, सो इसको हम सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 30 डिग्री. आप इसको कैलकुलेट करेंगे, पाई पाई कैंसल आउट, एंड 6 3 is 18, विच इज इक्वल्स टू 30 degree, and x equals to 30 degree. Okay, so these are the standard format. अगर आप पाई बाई 2 पता है तो आपको 90 डिग्री, पाई बाई 3 है तो 60 डिग्री, पाई बाई 4 है 45 डिग्री, एंड पाई बाई 3 है तो 60 डिग्री. ये सब थोड़े स्टैंडर्ड फॉर्म है जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड 10th में ट्रिग्नोमेट्री में किया होगा.
तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है थोड़े से, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि एंगल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल विच इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। दो एंगल ऑलरेडी दिया हुआ था, हम लोगों ने दो एंगल को यूज़ करके थर्ड एंगल फाइंड आउट किया और उसको डिग्री और रेडियन में उसको कन्वर्ट किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इन राइट एंगल ट्रायंगल एक्यूट एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5, फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इन डिग्री एंड रेडियन। सभी एंगल्स फाइंड आउट करने हैं लेकिन इन टर्म्स ऑफ द डिग्री एंड इन टर्म्स, ओके। दिस क्वेश्चन इज गिवन दैट इन राइट एंगल ट्रायंगल द एक्यूट एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5, फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इन डिग्री एंड रेडियन, ओके। ध्यान देना यहाँ पे, इसको मैंने ए नाम दिया, ए बी एंड सी। दिस एंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, सो दिस इज अ मेजर ऑफ 90 डिग्री। तो दो एक्यूट एंगल कौन कौन से बनेंगे, एक ए होगा दूसरा सी होगा। याद रखना कि दिस सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी, क्योंकि ट्रायंगल है तो प्रॉपर्टी सेम होगा। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू व्हाट 180, ठीक है। तो 180 डिग्री बेसिकली हम लोग 180 लिखते हैं, ठीक है। जो ऑलरेडी एक एंगल हमारा 90 डिग्री है दिया हुआ है, एक एंगल हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल दिस एंगल इज़ योर बी, ओके। ये आपका 90 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है, तो बचे एंगल है एंगल ए एंड एंगल सी, एंगल ए एंड एंगल सी बचा हुआ है। तो एंगल एंड सी का जो मेजर होगा, सम ऑफ दिस टू विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, तभी दोनों मिलके हमारा क्या होगा 180 डिग्री बनेगा। तो एंगल भी, एक एंगल ऑलरेडी 90 दिया हुआ है, इन दोनों का जो सम होगा दैट इज अ एंगल ए प्लस सी इक्वल्स टू कितना होगा 90 डिग्री होगा। इसलिए जो एंगल बी के साथ अगर मैं इसमें एंगल बी ऐड करूंगा, एंगल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90 प्लस 90, जो एंगल बी का वैल्यू 90 डिग्री है, इक्वल टू में क्या मिलता है 180 डिग्री मिलता है। इसका मतलब जो प्रॉपर्टी दिया हुआ है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, दो एक्यूट एंगल का जो एडिशन होता है वो कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो उसमें से जो हमारा एक्यूट एंगल होता है, तो यहाँ पे लेट दिस एंगल, ये हमारा जो रेशियो दिया हुआ है, देखो जब रेशियो हम लोग स्टैंडर्ड 9th और 10th में भी किया हुआ है, जब हमारे पास रेशियो होता है उसको एग्जैक्ट बनाने के लिए हम लोग वेरिएबल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इट इज़ गिवन दैट एक्यूट 4:5, ठीक है 4:5। तो इनके बीच में एक कॉमन नंबर होगा जो इनको एग्जैक्ट बनाएगा। मतलब क्या हो गया कि 4:5, इनका मल्टीपल कुछ भी हो सकता है, 40:50 भी हो सकते हैं, 10 के मल्टीपल में 8:10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट हमें एग्जैक्टली पता नहीं क्या हो सकता। मतलब जो नंबर मल्टीपल 4 into 1 is same as 5 into 1, 4 into 2 is same as 5 into 2, 4 into 3 is same as 5 into 3। तो आप देख रहे जो वेरिएबल, जो यहाँ पे नंबर फिक्स है 4 फिक्स है और यहाँ पे क्या है 5 फिक्स है, लेकिन बढ़ कौन रहा है जो इनके साथ में मल्टीपल है। तो इसलिए हम लोग एक ऐसे मेंबर को चूज़ करेंगे जो इनको एग्जैक्ट बना देगा। तो लेट एक्स विद अ कॉमन वेरिएबल, तो हमारा जो एंगल बनेगा, सो एंगल ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4x एंड एंगल सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। किसको भी आप कोई भी अज्यूम कर सकते हो। ए ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी यहाँ पे लिखते हैं, तो ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए इक्वल्स टू 4x हम लोगों ने लिया है एंड एंगल सी इक्वल्स टू क्या इतना हो गया 5x हो गया। तो नेक्स्ट एक्स हमारा कॉमन जो बढ़ेगा उसको हम लोग यहाँ पे कॉमन मल्टीपल लेते हैं, यहाँ पे भी एक्स आएगा तो यहाँ पे भी एक्स आएगा, जो इन दोनों को एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करेगा कि हाँ भाई एक्स ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों में मल्टीप्लाई किया तब जाके मुझे ये दोनों से निकालने के बाद तब जाके मुझे ये रेशो मिला हुआ है। तो एज वी नो दैट 4x प्लस 5x इक्वल्स टू कितना होता है 90 डिग्री। जैसे मैंने अभी सीखा हम लोगों ने कि दो एक्यूट एंगल का जो सम होगा वो भी इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा। और 90 सम 90 क्यों होगा, क्योंकि उसको 180 बनाना पड़ेगा। तो एक एंगल ऑलरेडी 90 दिया हुआ है, अगर इन दोनों का जो एडिशन है, इन दोनों को जो प्लस करेंगे इक्वल टू 90 होगा। ये 90 और ये 90 मिलके मुझे क्या बनाएंगे, टोटल सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू कितना बनेगा, मुझे 180 डिग्री मिलेगा। सो दिस बिकम अ 9x इक्वल्स टू 90, सो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10। तो ये जो x जो है, मुझे हम लोग जो यहाँ पे 1 2 3 ले रहे थे, एग्जैक्ट नंबर कौन है वो 10 है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ एक एंगल मुझे आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 10, तो एंगल A जो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू देगा वो 40 डिग्री होगा और एंगल C का जो एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगा वो हमारा 50 डिग्री हो जाएगा। बट एंगल B ऑलरेडी दिया हुआ है विच इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब ये सब तीनों कौन से फॉर्म में है, डिग्री के फॉर्म में। हमें फाइंड आउट कौन से फॉर्म में करना है, रेडियन फॉर्म में। डिग्री एंड रेडियन दोनों के फॉर्मेट में फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो लेट स्टार्ट विद दिस
कि इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो रेडियन कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको मल्टीप्लाई करना पड़े या समटाइम्स आपको कुछ चीज़ें याद करें, जैसे इसको आपने ऑलरेडी किया होगा, π/2 होता है। ठीक है, π/2 रेडियन। ओके, टू कन्वर्ट दिस एंगल 40 डिग्री वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 180 पाई डिवाइड बाय 180 वी नीड टू कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ द रेडियन। तो हमें इसको π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड दिस बिकम अ 2π/9 रेडियन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सॉरी 2π/9 रेडियन। ओके, सो 50 डिग्री को सेम एज कन्वर्ट करना है, 50 मल्टीप्लाई पाई डिवाइड बाय 180 एंड वी कैन राइट एज अ 5π डिवाइड बाय 18, 5π divided by 18. So we have a π/2, 2π/9 and 5π divided by 18 in terms of the radian. 40 degree, 50 degree and 90 degree, these are in terms of the degree. Okay, so come to the next question. अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ जनरल क्वेश्चन है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। होप दैट आपको मैं जस्ट एक इंट्रोडक्शन पार्ट जैसे बता दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कोई भी दो एंगल दिया हुआ है, सम ऑफ टू एंगल्स इज़ 5π एंड देयर डिफरेंस इज 60। उनका जो एडिशन है, सम मीन्स एडिशन प्लस डिफरेंस इज सब्ट्रैक्शन, दैट इज़ अ माइनस। ओके, तो लेट दीज टू एंगल्स आर ए एंड बी। ओके, तो इनका जो एडिशन है a प्लस बी इक्वल्स टू 5π है एंड जो डिफरेंस है दैट इज़ a माइनस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री है। अब स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है कि जब एडिशन, जब ऐसे इक्वेशन को जब आप सॉल्व करने के लिए जाते हो तो ऐसे इक्वेशन का जो हमारा यूनिट है एंगल का वो इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रेडियन में से आप डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, नहीं, आप ये नहीं कर सकते हो। आपको रेडियन में से रेडियन सब्ट्रैक्ट करना है और डिग्री को डिग्री में से ही सब्ट्रैक्ट करना है। बस इसी क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट है, बाकी कुछ है नहीं। सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट के लिए क्वेश्चन को डाला गया है कि अगर अलग अलग मेजर के लिए अगर एंगल दिया जाता है, उनको स्टूडेंट्स किस तरीके से सॉल्व करेंगे। फाइंड मेजर इन डिग्री में पूछा गया है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, जो 5π है इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो जो हमारा जो a एंड b का जो वैल्यू आएगा आफ्टर सॉल्व, हमें वो डिग्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो 5π को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 5π मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय पाई विच इज इक्वल्स टू 900 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा 900, पाई जाएगा 18 5 ज़ा 90 एंड 900। सो a प्लस बी रीराइट इक्वेशन कर सकते हो आप इसको, a प्लस बी इक्वल्स टू 900 एंड a माइनस बी इक्वल्स टू 60। सो ऐड करेंगे, तो एडिशन में दिस बिकम 2a इक्वल्स टू 960। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 4 ज़ा 2 8 ज़ा एंड दिस बिकम 480 डिग्री। तो a का वैल्यू जो होगा वो 480 डिग्री का एंड b का वैल्यू जो हो जाएगा 900 माइनस 480 कर देंगे। ठीक है, सो दिस टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यू कैन सी, यहाँ पे इन दोनों को वेरीफाई भी कर सकते हो। इनका जो डिफरेंस है वो 60 डिग्री है एंड इनका जो ऐड करोगे वो 5π हो जाएगा, दैट इज़ 900 हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन दैट द मेजर्स ऑफ अ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। अगेन ट्रायंगल आ गया तो उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, कोई भी आप एंगल यूज़ कर सकते हो। सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू व्हाट 180 डिग्री। स्टूडेंट्स इन जनरल आई विल राइट ओवर हियर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री और इन टर्म्स ऑफ द रेडियन इट इज़ अ पाई सी। आते हैं अब नेक्स्ट आगे काम करते हैं। आर इन द रेशियो, अगेन रेशियो में आ गया तो एक हमें कॉमन वेरिएबल लेना पड़ेगा। फाइंड द मेजर ऑफ डिग्री इन रेडियन एंड फाइंड द मेजर ऑफ एंगल इन टर्म्स ऑफ द डिग्री एंड रेडियन। फिर से स्टूडेंट्स कहीं भी रेशियो आता है तो आपको एक कॉमन वेरिएबल लेना पड़ेगा जो इन रेशियो को एक पर्टिकुलर वैल्यू देगा। ठीक है, लेट x बी द कॉमन वेरिएबल, बार बार आप x यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट x बी द कॉमन वेरिएबल, तो हमारा जो एंगल हो जाएगा हर एक एंगल, तो एंगल a का नाम दे देता हूँ, a हो जाएगा 3x, एंगल b इक्वल्स टू दिस बिकम 7x एंड एंगल c इक्वल्स टू हमारा जो हो जाएगा वो 8x। बट इन तीनों का एडिशन जो एग्जैक्ट वैल्यू हमें हमारे पास हो गया, बट इन तीनों का एडिशन जो होता है वो 180 डिग्री में होता है। तो आप 180 लेंगे तो आपको आंसर डिग्री में मिलेगा, अगर पाई लेंगे तो आपको आंसर किस में मिलेगा, रेडियन में मिलेगा। तो इन जनरल हम लोग डिग्री लेके पहले सॉल्व करते हैं, बाद में उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, तीनों को ऐड करेंगे, सो 3x प्लस 7x प्लस
8x इट इज इक्वल्स टू 180. ठीक है, सो दिस बिकम 18x इक्वल्स टू 180 एंड x इक्वल्स टू 10. सो ये हमारा जो कॉमन मल्टीपल है वो हमारा 10 है. तो ईच पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू आ जाएगी. a इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड एंगल b इक्वल्स टू दिस बिकम 70 डिग्री एंड एंगल c इक्वल्स टू व्हाट 80 डिग्री. सो दिस इज इन टर्म्स ऑफ द डिग्री. अगर आप इसको पाई में रेडियन में कन्वर्ट करना है, एज यू नो दैट क्या करना है. सो दिस बिकम योर π/6 स्टैंडर्ड फॉर्म है. मैंने इसको जस्ट π/6 डायरेक्टली लिखा. 70 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो यू कैन राइट 70 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180 विच इज इक्वल्स टू 7π/18. 7π/18 एंड दिस बिकम 80 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180. आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं. 4π/9 रेडियन, 7π/18 रेडियन एंड π/6 रेडियन. सो एंगल इन टर्म्स ऑफ द डिग्री एंड एंगल इन टर्म्स ऑफ द रेडियन. क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन. नाउ इट इज़ बेस्ड ऑन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज़ अ AP. सो 3 टर्म्स इन AP. लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट पार्ट. AP क्या होता है? दैट इज़ अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. आई थिंक स्टैंडर्ड 10th का टॉपिक है, चैप्टर है. उसमें AP को डिफाइन किया जाता है. ठीक है, जिसको हम लोग इन शॉर्ट AP बोलते हैं. दैट इज़ अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है. उसके 3 टर्म्स क्या होते हैं? 3 टर्म्स मैथ्स में अगर आपने उन्हें किया होगा, इसके 3 टर्म्स पहले होते हैं. A होता है, A+D होता है एंड A-D होता है. वेयर A इज़ अ फिक्स एंड D इज़ अ कॉमन डिफरेंस होता है. ठीक है, A इज़ अ फर्स्ट टर्म होता है एंड D इज़ व्हाट कॉमन डिफरेंस होता है. तो D को मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉमन डिफरेंस. D इज़ अ कॉमन डिफरेंस. A इज़ व्हाट फर्स्ट. तो दिस 3 टर्म्स इन AP. 4 टर्म्स होते हैं, 5 टर्म्स होते हैं, बट यहाँ पे हमें जितनी ज़रूरत है हम लोग उतना लेके सॉल्व करते हैं. ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को बनाने की ज़रूरत नहीं है. क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यूज़ करके इसको आगे लेके चलना है. ठीक है, बस आपको मेन पता होना चाहिए डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया है. इसके लिए मैंने एक पूरा का पूरा लेक्चर आपको 30 या 35 मिनट का लेक्चर पूरा आपको इसके ऊपर बेस पे कराया हुआ है. आप वो लेक्चर को देख सकते हैं, फिर आगे का ये आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा. द मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन AP. अगेन ट्रायंगल आया, फिर से 180 का कॉन्सेप्ट लगेगा. एंगल्स ऑफ सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, यहाँ पे सम ऑफ. अब यहाँ पे दिया हुआ है कि R इन AP. तो अगर R इन AP में है तो ये तीनों पार्ट को, जो 3 टर्म्स हैं, इसको मैं एंगल ट्रायंगल के एंगल एज्यूम कर सकता हूँ. फॉर एग्जांपल ये मेरा ट्रायंगल है. ठीक है, दिस इज़ आवर ट्रायंगल विच इज़ ऑफ द फॉर्म X, Y एंड Z. इसको मैं A नाम दे सकता हूँ एंड दिस इज़ योर A-D एंड इसको मैं नाम दे सकता हूँ A+D. ठीक है, बट तीनों का एडिशन इक्वल टू 180 होगा. पहले इसको लिख लेते हैं. A-D प्लस A प्लस A+D ऑलरेडी है विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. तो इस हिसाब से मेरे पास 3A इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री. -D प्लस D विल बिकम 0 एंड A इक्वल टू कितना हो जाएगा 60. जो फर्स्ट एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का होगा. अब यहाँ पे एक कंडीशन दिया. देखो फर्स्ट कंडीशन से जो मुझे मिला वो क्या मिला, A की वैल्यू मिल गया. दैट इज़ द फर्स्ट टर्म विच फर्स्ट एंगल जिसको आप बोल सकते हो विच इज एज अ 60 डिग्री. और क्या लिखा हुआ है, द ग्रेटेस्ट इज़ 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट लीस्ट. अब इसमें से ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट कौन सा होगा आप वो बताओ. ग्रेटेस्ट कौन सा बनेगा A+D और लीस्ट कौन सा बनेगा A-D. ये तो मिडिल टर्म है ना. नेक्स्ट टर्म कौन सा होता है A+D होता है एंड प्रीवियस टर्म कौन सा होता है A-D होता है. तो जो ग्रेटेस्ट नंबर है A+D, ये जो A+D है 5 टाइम्स कितने का है 5 टाइम्स द लीस्ट. लीस्ट कौन सा है A-D है. अभी इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा और इस कंडीशन को A की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे. सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ पे D का आंसर मिल जाएगा. कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा. ठीक है, यही तो हमें फाइंड आउट करना था. A की वैल्यू आ गया और D की वैल्यू आ जाए, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, A-D करेंगे तो फर्स्ट एंगल A का दैट इज़ आवर एंगल, A+D हमारा जो हो जाएगा सेकेंड एंगल. ठीक है, दैट इज़ आवर कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A+D. आप ऐसे भी लिख सकते हैं A+60, A-60, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. आप इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. डायरेक्ट A का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. 60 + D इक्वल्स टू 5 × 60 - D. तो सॉरी 60 + D इक्वल टू 300 - 5D.
डी को एक तरफ लेते हैं। ओके, सो हियर वी हैव अ 6d इक्वल्स टू 300 माइनस 60 डिग्री। ओके, तो 6d इक्वल्स टू 240, सो डी का जो वैल्यू हो जाएगा वो 40 डिग्री हो जाएगा। सो हमारे पास जो एंगल है कौन से फॉर्म में है, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। ओके, सो a माइनस डी दैट इज़ अ 60 माइनस 40 फर्स्ट एंगल बनेगा, 60 डिग्री आपका सेकेंड एंगल बनेगा, 60 प्लस 40 आपका थर्ड एंगल बनेगा। तो दिस बिकम अ 20 डिग्री, 60 डिग्री एंड इट इज़ अ 100 डिग्री। इन सब का एडिशन इक्वल्स टू 180 है, हाँ 180 है, तो हमारा जो आंसर है वो वेरीफाई भी हो गया। सो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो डिग्री एंड रेडियन में कन्वर्ट करना है, आप ये कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। π/6 दैट इज़ अ π/3, आप यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाई 180 कर देना, 100 मल्टीप्लाई पाई डिवाइड बाई 180 कर दो, जो आंसर आ जाएगा वो आपका रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। दिस इज़ अगेन कॉन्सेप्ट यूज इन स्टैंडर्ड 10th में कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। यहाँ पे एक सर्कुलर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, लेट मी टेल यू। जिस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग एक सर्कल में ड्रॉ करते हैं उसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी ये होती है अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू 180 डिग्री। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए हो गया, बी, सी एंड डी। So here we have a angle B, angle A. For example, adjacent angle are two adjacent angles are given. Cyclic quadrilateral, two adjacent angles are 40 degree and π/3 radian. Find the angles of a quadrilateral in degree form. तो π/3 को पहले मैं डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि सभी एंगल मुझे किस फॉर्म में चाहिए, डिग्री के फॉर्म में चाहिए। सो π/3 अगर मैं इसको π/3 को डिग्री में कन्वर्ट करता हूँ हमारा क्या होता है, 60 डिग्री होता है। तो लेट दैट एडजेसेंट मतलब अपोजिट नहीं, जो साइड में एंगल्स होते हैं उनको हम लोग एडजेसेंट एंगल। तो एंगल्स फॉर एग्जांपल आपका 40 डिग्री है एंड दिस एंगल इज़ योर 30 डिग्री, एंगल ए। तो एज वी नो दैट बाय द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय द प्रॉपर्टी ऑफ, ओके, सम ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यू कैन से इट इज़ सप्लीमेंट्री। So according to this property we have a angle A plus angle C equals to 180 degree and angle B plus angle D equals to 180 degree. This opposite to this, this opposite to this, A इसके opposite, A इसके opposite, ठीक है। So which is equals to angle A आपकी 40 डिग्री दिया हुआ है, तो C equals to कितना हो जाएगा, 180 माइनस 40 इक्वल्स टू 140 डिग्री, एंगल सी हो गया, ठीक है। सो एंगल बी ऑलरेडी दिया हुआ है 30 डिग्री प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल डी इक्वल्स टू 150 डिग्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो वी हैव ऑल 4 एंगल्स, एंगल ए बी सी, ऑलरेडी ए एंड बी इज़ गिवन दैट, वी नीड टू फाइंड आउट, हमें 2 एंगल फाइंड आउट करना था, एंगल सी एंड डी, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज़ द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस प्रॉपर्टी से हमने दो और एंगल फाइंड आउट कर पाए। सो होप दैट आपको ये लेक्चर पसंद आएगा, वीडियो पसंद आ रहा है आप इसको लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ अ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। वन एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ मेजर 2π/5 एंड मेजर ऑफ अदर 3 आर इन द रेशियो 2:3:4, फाइंड द मेजर ऑफ डिग्री एंड रेडियन। सिंपल है, फिर से रेशियो आया तो रेशियो का हमें कॉमन मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा, कॉमन मल्टीपल लेके इसको सम इक्वल टू समथिंग बताना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल के एंगल की प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो रोम्बस हो या फिर स्क्वायर हो, कोई भी साइकिल, उनके जो सभी एंगल आप ऐड करोगे वो 360 डिग्री के इक्वल होते हैं, ठीक है। एंगल ए बी एंड सी एंड डी, ठीक है। इसमें से एक एंगल आपको फिक्स दिया हुआ है, विट इज़ 2π/5 दिया हुआ है एंड इन टर्म्स ऑफ रेडियन में है, लेकिन मुझे जितने भी एंगल फाइंड आउट करने हैं वो रेडियन एंड डिग्री में फाइंड आउट करने हैं।
तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इस एंगल को मैं डिग्री में कन्वर्ट कर लेता हूँ। कभी भी आपको अगर डिग्री और रेडियन दिया हो तो पहले आप डिग्री को लेके सॉल्व करें, वो थोड़ा इजी पड़ जाता है और थोड़ा एक प्रॉपर वे में हो जाता है। ओके, सो पहले तो प्रॉपर्टी ऑफ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल लिख लेते हैं। तो क्या होता है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ऑफ डी इक्वल्स टू 360 डिग्री होता है। ठीक है, कितना होता है 360 डिग्री। सो 360 डिग्री, इसमें से एक एंगल जो है, बाकी के जो तीन एंगल है वो रेशियो के फॉर्म में है। लेट मी कंसीडर दिस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री। इसमें से स्टूडेंट्स एक एंगल जो है वो ऑलरेडी फिक्स दिया हुआ है, उसका कोई रेशियो नहीं, मतलब उसकी वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है जो है 2π/5। बाकी के जो तीन एंगल है वो रेशियो में है। रेशियो मतलब एक कॉमन मल्टीपल आएगा जो उनको एक एग्जैक्ट नंबर दे के, उनको एक एग्जैक्ट वैल्यू दे के उनको एक पर्टिकुलर एंगल बना देगा। ठीक है, तो उस कॉमन रेशियो को हम लोग यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे लिखूँगा लेट एंगल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2x, एंगल सी इक्वल्स टू 3x एंड एंगल डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4x। एंड वन एंगल ऑलरेडी इज गिवन दैट 2π/5। इसको मैं डिग्री में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 2π/5 को 2π/5 को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 2π/5 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइड बाई पाई हो जाएगा। तो इट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंड 5 इट इज़ 36 विच इज़ 72 डिग्री। 72 डिग्री ऑलरेडी एक एंगल दिया हुआ है, इसको मैं एज्यूम करता हूँ एंगल ए इक्वल्स टू 72 डिग्री। बट इन सब का जो एडिशन होता है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू 360 डिग्री होता है। तो आई कैन राइट ओवर हियर 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 72 इक्वल्स टू 360। So this become a 9x plus 72 equals to 360. So 9x equals to 360 minus 72. Okay, so this become a 288. So x equals to 32. एक कॉमन मल्टीपल आपका मिल गया। दैट मीन्स क्या हो गया कि x से जो 32 है ये इनको एग्जैक्ट नंबर देके इनको एक कॉमन मल्टीपल बना देगा। तो यहाँ पे लिखते हैं एंगल b का वैल्यू कितना हो जाएगा फटाफट। एंगल a ऑलरेडी किया हुआ है और एंगल a इक्वल्स टू 72 डिग्री। एंगल b इक्वल्स टू क्या 2 इंटू 32 64 डिग्री। यहाँ पे लिख देता हूँ 2 इंटू 32। ओके, x की वैल्यू कितना है 32 है ना। एंगल सी इक्वल टू, देखो प्रॉपर्टी आप प्रॉपर यूज़ करोगे ना तो आ जाएगा। जो भी आपको डायग्राम में आता है, जैसे ट्रायंगल आ गया तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको क्लिक होना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल आ गया तो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी आपके माइंड में फटाफट आनी चाहिए। जो एंगल के बारे में बात करें तो एंगल की प्रॉपर्टी आना चाहिए। जैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आ गया उसमें भी एंगल की बात हो तो एंगल उसके बारे में प्रॉपर्टी आए, तो बेसिक प्रॉपर्टी आपको आना चाहिए। तो इस हिसाब से आप कोई भी क्वेश्चन को ईजिली टैकल कर सकते हो, इसको ईजिली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो एंगल सी इक्वल्स टू व्हाट 4 इंटू 32 दैट इज़ 128 ना, ये होगा ना 4 इंटू 32, 2 टाइम और 64 के 4 टाइम 120 हो जाएगा। तो एंगल डी इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है एंगल डी, एंगल ए बी सॉरी एंगल सी इज़ व्हाट 3x है, तो मैं इसको 6 लेता हूँ एंड ये 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 96 एंड 3। ठीक है, सो एंगल इज व्हाट 4x इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाई 32 इक्वल्स टू व्हाट कितना हो जाएगा 128। तो सब डिग्री के फॉर्मेट में है 96, 72, 64, 128। मुझे रेडियन में भी चाहिए तो आप रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए। आपको कैसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180 कर देना है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम फॉर दिस लेक्चर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो रहेगा स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी क्वेश्चन है, बट आपको एक और प्रॉपर्टी आना चाहिए। यहाँ पे हर जगह पे प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ेगी एंड वो प्रॉपर्टी अगर आपको आता रहेगा आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपको किसी ट्यूशन क्लासेस कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस वीडियो को ध्यान से देखो, कौन सी प्रॉपर्टी उसको आप लिख लीजिए, बस उसी को आप रिविजन करिए, आपका काम हो जाएगा इतने में। ठीक है, फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ एक्सटीरियर इंटीरियर रेगुलर पेंटागन, हेप्टागन, हेक्सागन, ऑक्टागन। स्टूडेंट्स, ये जो पेंटागन दिया हुआ है एंड हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर्म्स होते हैं और एक टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज़ नोन एज व्हाट पॉलीगॉन।
पॉलीगॉन क्या होता है, जितने भी आप टर्म्स बनाओगे या कितने भी आप टर्म्स बनाते चले जाओ उसको हम लोग पॉलीगॉन बोलते हैं। अगर 5 आर्म्स है जाए तो पेंटागॉन हो जाएगा, अगर 6 आर्म से बना रहे हो तो हेक्सागॉन हो जाएगा, 7 से बना रहे हो तो हेप्टागॉन हो जाएगा, एंड ऑक्टागॉन के लिए आपको 8 आर्म्स है। इसका मतलब जो नंबर ऑफ साइड इंक्रीज करते जाओगे उस हिसाब से उसका नेमिंग चेंज होता जाएगा। ऐसा कोई भी आप अगर आप रेक्टेंगल लेते हो ये भी एक तरफ का पॉलीगॉन होता है, ठीक है। अगर आप ट्रायंगल लेते हैं तो ये भी एक टाइप का पॉलीगॉन है। बस यहाँ पे नंबर ऑफ साइड, यहाँ पे एन की जो वैल्यू नंबर ऑफ साइड कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, एंड पेंटागॉन में नंबर ऑफ साइड कितना हो जाएगा 5 हो गया। तो यहाँ पे एन की जो वैल्यू होगी वो 5 होगी, एन की जो वैल्यू होगा यहाँ पे 7 होगा, एंड हियर एन इक्वल्स टू 6, हियर एन इक्वल्स टू 8। ठीक है, मैं एक या दो सॉल्व करूँगा, बाकी के आप सॉल्व कर लेना, बस एन के वैल्यू आपको चेंज करते जाना है, आपको वहाँ पे मिलता चला जाएगा। अब इसके एंगल क्या होते हैं, देखो एक एक्सटीरियर एंगल होता है, एक इंटीरियर। अगर मैं एक ट्रायंगल को देखता हूँ एज अ पॉलीगॉन, तो इसमें से जो इंटीरियर एंगल बनेगा ये बनेगा, दिस इज़ योर इंटीरियर एंगल, दैट इज़ एंगल ए बी एंड सी। तो अगर एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये आपका एक्सटीरियर एंगल बनेगा, दिस इज़ योर एक्सटीरियर एंगल, दिस इज़ योर एक्सटीरियर एंगल। क्लियर। बट अब यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द डिग्री इन रेडियन मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन या रेगुलर पेंटागॉन। रेगुलर का मतलब क्या होगा, जो एन है ना, जो इसका साइड है, रेगुलर का मीनिंग हो गया जो साइड है ना, सबका जो लेंथ है वो इक्वल रहेगा। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो 1 AB 1 AB 1 AB 1 AB 1 AB सब 1 सेंटीमीटर होंगे। ऐसा नहीं एक बड़ा एक छोटा, और रेगुलर नहीं होगा, मतलब एक प्रॉपर नहीं दिखेगा। रेगुलर होने के लिए सभी जो साइड होंगे उसके इक्वल लेंथ के होंगे, चाहे वो 2 सेंटीमीटर हो, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, एनीथिंग। नाउ वी हैव टू टेक द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखता हूँ, सम ऑफ, पहले सम निकालेंगे फिर सिंगल निकालेंगे। सिंगल कैसे आएगा, नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे तो हमारा सिंगल आ जाएगा, लेकिन सम पता होना चाहिए। सम ऑफ एक्सटीरियर, इसको आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इक्वल्स टू 360 डिग्री। अगर आप ट्रायंगल का जो इनसाइड आप देखोगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कैसे होता है देखिए, ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू कितना है 3 है, सो 3 - 2 मल्टीप्लाई बाई 180 करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है 180 मिलता है यहाँ पे, विच इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो सिमिलरली तो यहाँ पे सम हो गया। अगर मैं इसी डिवाइड बाय n कर दूंगा नंबर ऑफ साइड्स है, मुझे हर एक इंटीरियर एंगल का वैल्यू आ जाएगा। सो ईच इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, each interior angle equals to n - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय n। ठीक है, n से डिवाइड करोगे तो आप ईच एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू आ जाएगा। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, ये आपका नोट हो गया, नोट नंबर 1 एंड 2। अब क्वेश्चन को लेके इसको सॉल्व करना है। फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागॉन। n इक्वल्स टू 5 लेते, फर्स्ट मैं सॉल्व करता हूँ, बाकी आप कर लेना। Here will take n equals to 5। तो each exterior angle कितना हो जाएगा, each exterior angle equals to 360 divided by 5 which is equals to what 72 डिग्री। तो रेगुलर पॉलीगॉन है तो आपको ऐसा नहीं बहुत सारे एंगल मिलेंगे, जो भी एंगल होंगे एक्सटीरियर वो सब 72 डिग्री का ही हो गया। ठीक है, क्योंकि ये कैसा है रेगुलर है तो जो लेंथ है, जो आर्म्स है उनके जो लेंथ है वो कितने होंगे, जो ये लेंथ है ये सब क्या है एक ही यूनिट होंगे, जो भी एक्सटीरियर एंगल होगा वो सब एक ही पार्ट का होगा, एक ही मेजर के होंगे, दैट इज़ 72 डिग्री। इसी का एक इंटीरियर एंगल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो इंटीरियर एंगल हो गया तो कितना हो जाएगा n - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय n हो गया। ठीक है, कितना है n इक्वल्स टू 5 है तो 5 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 5 so equal to 3 multiplied by 180 divided by 5 and it is equals to 3 multiplied by 36 है ना, so 108 डिग्री ये आपका इंटीरियर। तब आप इसको 72 को आप इसको
रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए। 72 को आंसर पूछे ना, रेडियन मेजर बोला है तो रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए एंड 108 को आप रेडियन में कन्वर्ट कर, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस, फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इन अ क्लॉक एट दिस पार्ट। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट मैं एक अलग से लेक्चर पे रखूँगा, चाहे वो 5 मिनट का लेक्चर चाहे 10 मिनट, बट वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तब तक के लिए आप इसको ट्राई करें। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।